دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم ہے، آخر تک دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو ہے کربلا کا واقعہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ تو آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کی جنگ کیوں ہوئی تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا تھا، اور یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا پیاسا کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ تھا کہ کربلا کے میدان میں اپنی پوری فوج حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیج دی؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید کو اتنا خطرہ تھا؟ یہ ساری ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں بتا سکوں۔ معاویہ ابن ابو سفیان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت انسان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین علیہ السلام قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر یہ میری بیعت کو مانے، اگر یہ میری بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ روانہ کر دیا کہ جاؤ اور وہاں جا کر کوفہ کے حالات سے باخبر ہو جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم ابن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں اور آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً کوفہ چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کوفیوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر آ رہا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا
कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे करबला के मैदान में लगाए हुए हैं, तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सिपह सालारी उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का या मदीना वापस जाने दो। मगर इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से एक बात भी कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वक्त गुजरता गया और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 82 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना खौफ था कि जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ 82 लोगों के साथ करबला में मौजूद थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया। याद रहे कि यजीदी फौज की तादाद के बारे में मोरखीन में बहुत ही इख्तलाफ है। असल तादाद क्या थी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तो ही इनका मुकाबला किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि यजीदी फौज ने कभी भी कोई भी फैसला खुद तय नहीं किया था, बल्कि जो भी काम करबला में हुआ उनका आर्डर या तो यजीद भेजता था या फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसके हुक्म के मिलते ही वही काम सरअंजाम दिया जाता था करबला में। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया। 7 मुहर्रम के दिन ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पीने के पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सवाए नहर फुरात के। नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे वालों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। यजीद की फौज, जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को चारों तरफ से घेरा हुआ था, 9 मुहर्रम के दिन जंग का ऐलान कर दिया। मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनसे जाकर कह दो कि हमें एक रात अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत मांगी तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम की रात को अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह इकट्ठा किया और आपने फरमाया कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1 या 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता हो वो यहाँ से वापस लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलवाया गया तो सारे के सारे लोग उसी जगह पर बैठे हुए थे जहां पर बैठे थे और कोई भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीदी फौज के दरमियान जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बहुत ही बड़ी फौज थी, वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो गया
और सबसे पहला तीर उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास ने चलाया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से बच्चों की प्यास बर्दाश्त ना हुई और आप एक मशकीज़ा लेकर घोड़े पर सवार होकर फुरात की तरफ निकल गए। नहर फुरात पर पहुंचकर आपने एक मशकीज़ा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौट रहे थे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाकर आपको शदीद जख्मी कर दिया था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान को शहीद कर दिया गया और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद तलवार लेकर मैदान में आने का फैसला किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से काफी वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिस पर यजीदी फौज के कमांडर उमर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि कुछ भी हो जाए हम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उसने अपने तमाम फौजियों को ये हुक्म दिया कि एक एक या दो दो करके नहीं बल्कि तमाम तर एक ही वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करो। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान में बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी कि इसी वक्त में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुश्किल वक्त और जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया यजीदी फौज को वो मौका मिल गया जिसका वो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गए, शिमर जिलजोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिमर इब्ने जुलजोशन ने शहीद किया। दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सनान इब्ने अनस नखई ने शहीद किया और तीसरी रिवायत में खूली इब्ने यजीद का नाम आता है, लेकिन ज्यादातर शिमर इब्ने जुलजोशन के बारे में रिवायत मिलती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद करके पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाले गए थे। करबला की इस जंग में तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो करबला के वाक़या। आखिर तक देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपने राय लाजमी लिखें ताकि हमको हौसला अफजाई हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।